So today we are going to discuss about the various psychrometric processes. Can you see the screen? Yes, Yes, sir. sir. It's Yes, visible. it's visible. Okay. So in the last class we discussed about the various psychrometric properties. I explained you about the psychrometric chart also. So today I am going to discuss about the various psychrometric properties processes. So what are the various psychrometric processes? These are number one sensible heating, number two sensible cooling, number three humidification, number four dehumidification, number 5 heating and humidification, number 6 cooling and humidification, number 7 heating and dehumidification, number 8 cooling and dehumidification, and number 9 it is adiabatic mixing of two air streams. So these are 9 psychrometric processes. So we will go one by one and discuss about these processes. Okay, so let us see. First of all, I am going for the ninth process, which is the adiabatic mixing of two air streams. So first of all, I will discuss about this particular process. Just a minute. Yes. So now what you can see here on the left hand side, uh, this is the process of adiabatic mixing actually. See, this is the insulated duct you can say, and it has two inlets. See, one inlet is here and other inlet is here. Okay, so we can see that there are two air streams. One is having mass flow rate of dry air, which is equal to ma1. Its specific humidity is w1, and its dry bulb temperature is t1. Similarly, there is another air stream which is entering in this duct, and its mass flow rate is ma2. Specific humidity is w2, and dry bulb temperature is T2. So these are mixing here, and after mixing in the insulated duct or the adiabatic duct, we get the air. Its total mass flow rate is Ma3, its final specific humidity is W3, and its final dry bulb temperature is T3. So here you can see I have shown this diagram on the psychrometric chart also. So you can see at C8.1 the dry bulb temperature is shown to be T1 and the specific humidity is shown to be W1. Similarly, if you see the point number 2, you can see here the dry bulb temperature is T2 and the specific humidity is W2. So first of all, actually while drawing it, what we can do is, I am drawing this diagram again. So if you will see it here, this is one of the points, this is state point 1 I can say, and this is another state point, this is state point 2. Okay, now actually when we mix this, we get the final uh, uh, condition of the air after the mixing, which is given by the properties W3 and T3 actually. Okay, now we have to calculate where will be this point number 3 actually after the mixing. So that is also not shown here. So how to calculate that? Now you know, if there is two streams which are mixing and we are getting the third stream, then it should follow the conservation of mass. So first of all, we have written conservation of mass, which is here. I can say that ma1 plus ma2 should be equal to ma3. So it gives the conservation of mass equation. The second one is the moisture balance. Moisture balance means how much is the water vapor which is associated with this quantity of air. You know that W, what is W? It is specific humidity. It is given by mass of water vapor divided by dry air mass. So if I have to calculate the value of the mass of water vapor, that will be equal to W into MA. Okay, so this is the kgs of water vapor. So when we are doing the moisture balance,
for the moisture balance, uh, I have written the equation Ma1 W1. So this will give the moisture in the air stream which is entering at state point 1 plus moisture in air stream 2 which is given by Ma2 W2, and that should be equal to Ma3 W3. So in the next line, instead of Ma3 we have written Ma1 plus Ma2. Otherwise, if you will see the equation, the whole equation is same. Ma1 W1 plus Ma2 W2 is equal to Ma1 plus Ma2 into W3. So this is the equation, and when we will solve this particular equation, we will get the value of W3, which is given by this particular equation. W3 will be equal to Ma1 W1 plus Ma2 W2 divided by Ma1 plus Ma2. So this gives us the value of W3. And from this particular equation, I can also calculate the value of the ratio of the masses of airstream 1 and airstream 2. So this is the equation for the ratio of two masses, and you can see it is equal to Ma1 by Ma2, which is equal to W2 minus W3 divided by W3 minus W1. So this equation we can get directly from this particular equation or from this particular equation. Okay. So, and you can see when we are writing this expression, it is cyclic in nature. Cyclic in the nature means if I am writing Ma1, which is equal to, next I can write W2, then minus W3. So 1, 2, 3. So if I am starting from 2, Ma2, that should be equal to 2, 3, 1. So it's going in cycle actually. So if I am starting from 2, then 2, 3, 1. If I am starting from 1, 1, 2, 3, and so on. So that is how you can remember it. Now I can write the equation for the energy balance. Now for the energy balance, I can write the equation Ma1 H1, that is the enthalpy, plus Ma2 H2 is equal to Ma3 H3. So only thing in the energy balance is that instead of specific humidity, we are using the enthalpy. So in a similar manner, I can get the value of H3. So once H3 is known, I can once again calculate the ratio of the masses of the airstream, which is given by Ma1 equal to H2 minus H3 divided by H3 minus H1. Okay. Now that means now we have calculated the enthalpy and the specific humidity of the final condition of the air. So that means I can easily plot the point number 3. So where will be the point number 3? Point number 3 will be on the line joining 1 and 2, and let us say this is the point number 3, because I have already calculated the two values. What are those two values? I have calculated W2 and I have calculated W3 and H3. So I can see that this is the value of the W3. So that means from W3 only, the I know that this will be point number 3 will be lying on the horizontal line, and H3 will be drawn like this. This is the H3. So if you will see it here, here we have the enthalpy scale. This is the scale of the enthalpy. So here this value corresponds to H3. So I can get this particular point. This is the point number 3, and this is the final condition of the airstream which is leaving the after the adiabatic mixing actually. Now where this point 3 will lie? Now I would like to tell you this point 3 is the final condition of the air, and it lies on a line. It lies on a straight line joining the two air streams in the inverse ratio of their masses. Now, what is the meaning of this line actually? Once again, I will read it once again. The final condition of the air lies on a straight line joining the two air streams, joining the states of the two air streams. States
of two air streams in the inverse ratio of their masses. In the inverse ratio of their masses. So the meaning is very simple. Suppose if you mix two types of the masses of a particular substance, let us say if one mass is 90 kg and other mass is, let us say, 10 kgs. Okay, so the length which can represent 10 kg could be 1 centimeter, and the length which can represent 90 kg is 9 centimeter. Now suppose it has a temperature which is equal to 40 degrees Celsius, and it has a temperature which is equal to, let us say, 20 degrees Celsius. Now can you tell me where will be the final temperature? Will the final temperature will be near to 40 degrees Celsius, or will it be near to 20 degrees Celsius? From our experience, we know that the final temperature will be near to 40 degrees Celsius, because the 40 degrees Celsius, the mass of this air is more. It is 90 kgs and it has a temperature of 40 degrees Celsius. So if we will mix it with 10 kgs having a temperature of 20 degrees Celsius, so the final condition will lie near to the 90 kg mass. So that means if I have this particular point which is representing, if I say this is state point 1 and this is state point 2, so if I say this is the 9 centimeter which represents the 90 kgs of Ma1, and this is the 1 centimeter which is representing the state point 2. So actually, as I told you, the final condition will be near to the stream number 1, okay, because its mass is more. So the final condition will be here. See, this was 9 actually. This 9 actually represents the mass which is corresponding to state point 1, and this 1 centimeter represents the mass corresponding to 10 kgs. But the final condition will be here at this particular point, which is state point 3, and this will be, you can say, this will be 1 centimeter, and this will be 9 centimeter. Okay, so that is the meaning of the inverse ratio of the masses actually. So I hope this is clear to you. If you have not understood this concept, you can ask me right now. Repeat. Okay. See, actually, whenever you mix two streams, for example, अब एक काम करते हैं कि मान लो आपके पास ना एक बाल्टी में आपने पानी लिया, सपोज उसमें 90 केजीज जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी डाला, और 10 केजी जो वाटर है वो हमने सपोज 5 डिग्री सेल्सियस पे लिया है, ठीक है। तो फाइनल कंडीशन कहाँ पे होगी? क्योंकि 90 केजी का जो वाटर की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो फाइनल कंडीशन जो होगी वाटर की, दैट वुड बी नियर टू द टेम्परेचर ऑफ द मास विच इज हैविंग वाटर विच इज हैविंग मोर मास एक्चुअली, ठीक है ना। 90 केजी का मास बहुत ज़्यादा है, तो वो फाइनल टेम्परेचर जो होगा उसके पास होगा। लेकिन अगर मैं 90 केजी को एक लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो वो 9 सेंटीमीटर है, और जो 10 केजी है जो लो टेम्परेचर पे है वो 1 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, जो मैंने कोशिश किया है यहाँ पे समझाने की, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस का मतलब क्या है? इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस का मतलब यही है कि अगर 9 केजी को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और 90 केजी को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और 10 केजी को इतनी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो फाइनल कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी। फाइनल कंडीशन होगी 90 केजी वाली लाइन के पास, 90 केजी वाले पॉइंट के पास। तो फाइनल कंडीशन यहाँ पे लाई करेगी, क्योंकि ये 70 डिग्री है और ये जो है ये 5 डिग्री सेल्सियस है, तो मासेस की इनवर्स रेशियो में हो जाएगा। तो ये जो है अब 10 केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है इतनी लेंथ, और ये जो है 90 केजी को रिप्रेजेंट कर रही है लेंथ, तो इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में चला गया जो फाइनल कंडीशन है। दैट इज द मीनिंग एक्चुअली व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर। ओके, so I hope this process is clear to you. Okay, so once again, before I proceed further, I would like to remind you about the various lines. Before I proceed further, I would like to remind you about the psychrometric chart here. See, this is the saturation line where the relative humidity is 100%. This is dry bulb temperature increasing in from left to right. Here we have
the value of W, which is increasing in the vertical direction. This is the line which is representing wet bulb temperature is equal to constant, and to some other scale, this line also represents constant enthalpy. This is enthalpy scale. This is enthalpy scale, and enthalpy is equal to constant along this particular line. So same line represents wet bulb temperature line and constant enthalpy line. Okay, this vertical line is for the dry bulb temperature, horizontal line is for the specific humidity. If I have to draw the, let us say, uh, specific volume line, then it is like this is the specific volume line. Okay, and this is the relative humidity lines. Okay, so these are the various lines. If you know, I told you about the dew point temperature also, and dew point temperature is calculated if this is the psychrometric chart and this is the state of the air, which is plotted by three properties. So what you have to do, you have to follow this path. Wherever it intersects here on the saturation curve, this is the value of the dew point temperature. So this point gives us the value of the dew point temperature corresponding to this particular state of the air. So you have to draw a horizontal line towards left side wherever it intersects the saturation curve. At that particular point, you get the dew point temperature. So this is how we should know the various properties actually. Now I am going to process number one, which is the sensible heating. Now sensible heating. Now what is the meaning of sensible heating? Sensible heating is basically heating the air without changing its specific humidity. So when I say its specific humidity is constant and its dry bulb temperature is increasing, then this process is sensible heating. Okay, so you see it here. So here we have uh, state point 1, and we are going towards right side up to point number 2, and you can see what is happening. W1 is equal to W2, so it is constant. Specific humidity is not varying. Once again, to remind you, what is specific humidity? W is equal to mass of water vapor divided by mass of dry air part. So it means when W1 is equal to W2, the mass of water vapor, this quantity will not vary actually. Okay, mass of water vapor will remain constant. So this is our purpose during sensible heating, that we have to increase the temperature from T1 to T2. So T1 is dry bulb temperature, T2 is also dry bulb temperature. Okay, so keeping specific humidity constant, तो हमने specific humidity को constant रखा है. तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, टू इंक्रीज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर विदाउट चेंजिंग मॉइस्चर कंटेंट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दैट इज W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंसिबल हीटिंग. अब इसको करेंगे कैसे? करना भी बहुत आसान है. मान लीजिए हमारे पास ये एक डक्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे शो की हुई है, ये मेरे पास एक डक्ट है. इस डक्ट के अंदर मैंने एक हीटिंग कॉइल लगाई. हीटिंग कॉइल क्या हो सकती है? ये एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग कॉइल. ओके, इलेक्ट्रिकल हीटर हो सकता है. तो इलेक्ट्रिकल हीटर में मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मास ऑफ एयर कितना है? Ma1 है. इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर T1 है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 है. अब जब मैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग करूंगा तो मैं इसके अंदर कोई मॉइस्चर तो ऐड कर नहीं रहा, तो क्या होगा? सिर्फ इसका जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और ये T2 पे पहुंच जाएगा. मास ऑफ एयर उतना ही रहेगा Ma1, और जो फाइनल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी वो W1 के बराबर ही रहेगी. ओनली चेंज इज इन द dry bulb temperature, that it increases from, let us say if the initial temperature was, dry bulb temperature of the air was 20 degree Celsius, now it is living at 40 degree Celsius. तो 20 डिग्री का sensible heating हो गया इसमें. Okay, one more important thing about it is that the heating coil is maintained at a temperature T3. अब अगर मेरे को 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक एयर को हीट करना है, तो हीटिंग कॉइल हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस पे होगा. इसकी सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस होगा. ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना. क्यों 50 डिग्री सेल्सियस होगा? क्योंकि सारी की सारी एयर जो है वो हीटिंग कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएगी, कुछ एयर स्किप कर जाएगी.
तो अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पे एयर एंटर कर रही है डक्ट के अंदर, तो वो 40 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच सकती है, 50 डिग्री सेल्सियस तक कभी भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हीटिंग कॉइल की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, जब हम सेंसिबल हीटिंग कर रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले, ये जो डायग्राम है, ये स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये आपने अपने दिमाग में रखनी है। अब देखो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा, नंबर 1 मैंने क्या लिखा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर टी, ये इंक्रीज हो रहा है। अब दूसरी बात करते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर को क्या होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर मैंने यहाँ पे डायग्राम में ये शो किया है, दिस इज T1 डैश और ये T2 डैश है। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ पे देखोगे, मैं दोबारा इसको यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ यहाँ पे 1 से 2 के बीच में, तो अगर ये जो टेम्परेचर है, ये T1 डैश है और ये T2 डैश है। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द वैल्यू विच इज़ अवेलेबल हेयर। तो अगर ये टेम्परेचर मेरे पास 15 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है कि ये टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस हो, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया। अच्छा, तीसरा मैंने क्या कहा है, एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। एंथैल्पी क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि हम हीटिंग कर रहे हैं, तो एयर की एंथैल्पी इंक्रीज होगी होगी। चौथा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आपको मैंने बताया था कि हमें, हमारे पास कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट नंबर मैं 2 ले रहा हूँ, तो मेरे को अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखना है इस पॉइंट पे, तो मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहां से टेम्परेचर रीड करूंगा, यहाँ से ये रीड करा मैंने टेम्परेचर, तो ये जो वैल्यू आएगी ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की है। तो अगर मैं 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, या मैं पॉइंट नंबर 1 से ड्रॉ करता हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो मेरे को सेम पॉइंट मिलेगा। तो इसलिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम रहेगा कंडीशन 1 पे और कंडीशन 2 पे, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाएगी। आपने हीट किया एयर को, तो नेचुरली है हीट करने से स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को क्या होगा, डब्ल्यू, आपको बता दिया डब्ल्यू को कांस्टेंट रखना है, तो डब्ल्यू कांस्टेंट रहेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डाउन चली जाएगी। क्यों डाउन चली जाएगी, यहाँ पे देख लो, इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे, ये 100% की लाइन, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो हो सकता है ये 80% हो, यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो हो सकता है कि ये 60% हो, यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो 40% हो। तो अगर आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट को रेफर करोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो मेरी जो लाइंस हैं वो यहाँ से, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है 2, तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इज इट क्लियर, सेंसिबल हीटिंग पार्ट। कुछ पूछना है तो बताओ। सर हीट करने से वाटर वेपर्स इवेपोरेट नहीं होंगे? देखो, अगर आपके पास एयर का एक सैंपल है, ठीक है, तो अगर आपने उसको एक क्लोज्ड कंटेनर में ले रखा है, ओके, तो वहां पे हम वाटर तो और एक्स्ट्रा तो डाल नहीं रहे हैं। ठीक है, वाटर तो ऑलरेडी जो है एयर के अंदर सुपर हीटेड स्टेट में है, तो क्या होगा, मॉइस्चर की क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी ना। हमने कोई सेपरेटली बाहर से तो मॉइस्चर ऐड करना ही नहीं है इस प्रोसेस में। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इसमें W1 और W2 दोनों बराबर हैं, मास ऑफ वाटर वेपर सेम रहेगा, सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। इज इट ओके? ओके। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट प्रोसेस से पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये मैं बताना चाहूँगा, यह सेंसिबल हीट अब इसमें कितनी ऐड होगी। देखो, अब सेंसिबल हीट ऐड करने के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है। हमें मालूम है कि टोटल जो क्वांटिटी थी एयर की वो है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर जो है वो ma है, और फाइनल जो एंथैल्पी है वो H2 हो गई, और इनिशियल एंथैल्पी जो है H1 है, तो H2 माइनस H1, तो ये टोटल हीट जो है ऐड हो रही है एयर में। अब मुझे मालूम है कि जो एयर का एंथैल्पी का फार्मूला है, एच एच का फार्मूला है, इसकी जो वैल्यू है ये आती है किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर में। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी मेरे पास है CPA/T, मतलब ये जो है ड्राई एयर पार्ट की एंथैल्पी है, और ये जो एंथैल्पी है ये वाटर वेपर की है। जब मैंने पिछली बार साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे डिस्कस किया था, तो ये फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, अब
मैंने कैलकुलेट करना है H2 माइनस H1, तो मैंने पहले H का फार्मूला लिख दिया आपके सामने। तो अगर आप देखोगे तो मैंने, अगर H2 माइनस H1 कैलकुलेट करना है तो मेरे पास फार्मूला आएगा CPA T2 माइनस T1 प्लस, अब अगर मैं पहली टर्म लेता हूँ W और मैं W2 माइनस W1 लिखता हूँ, तो वैल्यू कितनी होगी? W2 माइनस W1 तो जीरो है, तो मतलब पहली टर्म जो होगी W इंटू एच एफ जी, ये तो जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या है, दूसरी इक्वेशन, दूसरे पार्ट के साथ अगर W को मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आएगी टर्म W2 इंटू CPV। CPV क्या है? ये 1.88 वैल्यू जो दे रखी है, ये CPV है, ये जो वैल्यू है ये CPV है, इंटू T2 माइनस W1 CPV T1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस पूरे इक्वेशन में CPV जो है कॉमन है, तो मैंने अब इसको क्या लिखा, W इंटू CPV। इस पूरी इक्वेशन में से मैंने W इंटू CPV ये कॉमन ले लिया, क्योंकि W1 और W2 तो बराबर है। तो मेरे पास ये आ गया, यहाँ पे T2 माइनस T1 और यहाँ पे भी T2 माइनस T1 रह जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, CPA प्लस WCPV T2 माइनस T1। और ये जो टर्म है, पहली टर्म ये वाली, ये है स्पेसिफिक हीट की मॉइस्चर, स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉइस्चर CP। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 1.0216 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास H2 माइनस H1 की, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉइस्चर है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा, ये जो वैल्यू मैंने सेंसिबल हीट की कैलकुलेट करनी है, इसको यहाँ पे MA से भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने MA का फार्मूला निकाला, यहाँ पे MA का फार्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये जो टर्म मैंने CMM लिखी है, CMM क्या है? CMM है मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, तो ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम को अगर आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, डेंसिटी की यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। तो फार्मूला क्या आएगा, यूनिट क्या आएगी? यूनिट आएगी केजी पर मिनट। तो केजी पर मिनट आ गया, उसको मैंने जो है 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर जो निकला, इसकी यूनिट जो निकली मास फ्लो रेट की, ये आ गई केजी पर सेकेंड। ओके, केजी पर सेकेंड। और यहाँ पे मैंने इसको पुट करा, जस्ट होल्ड ए मिनट। ओके, तो यहाँ पे जो है मेरे पास, अब मैंने QS की वैल्यू निकाली। QS में क्या है? ये मास फ्लो रेट की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाइड बाय ये H2 माइनस H1 की वैल्यू पुट करी। सो फाइनली अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला। ओके, QS इज इक्वल टू 0.024 इंटू CMM इंटू डेल्टा टी। तो आपको पीछे जो इसका डेरिवेशन है वो आए या ना आए, आप इस इक्वेशन को याद कर लो, बस सिर्फ इस इक्वेशन को याद कर लो। 0.0204 CMM डेल्टा टी किलोवाट्स, ये सेंसिबल हीट एडेड है। और CMM का फुल फॉर्म क्या है? क्यूबिक मीटर पर मिनट। यही मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ये बेसिकली यूनिट को लिखा हुआ है हमने, मीटर क्यूब पर मिनट। तो ये एक तरह से वॉल्यूम फ्लो रेट है एयर का। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किलोवाट में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? सेंसिबल कूलिंग है। अब देखो, सेंसिबल कूलिंग का क्या है, ये उल्टा है। सेंसिबल हीटिंग में हम W को कांस्टेंट रख रहे थे, और यहाँ पे हम वंस अगेन W को कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन अब हम ठंडा कर रहे हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डाउन जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। अगर पहले 40 डिग्री था तो अब 20 डिग्री हो रहा है। और कीपिंग W कांस्टेंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब अगर इसमें मैं देखूंगा तो WBT को क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को। इनिशियली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पे है, ये है T1 डैश, और ये जो है टेम्परेचर ये है T2 डैश। तो T1 डैश यहाँ पे ड्यू ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर कम है। ओके, तो वेट बल्ब टेम्परेचर डाउन चला गया। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वेट बल्ब टेम्परेचर डाउन चला गया। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करें, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, यहाँ पे ये आएगी वैल्यू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। दिस वैल्यू इज TD1 विच इज इक्वल टू TD2। ओके, TD2, ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा है एंथैल्पी जो है रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम कूलिंग कर रहे हैं, तो H2 जो है H1 से कम हो जाएगा।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी पॉइंट नंबर 2 पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पॉइंट नंबर 1। क्या किया है हमने, डायग्राम में दोबारा देख लो। ये प्रोसेस है हमारे पास, 1 से हम 2 की तरफ आए हैं। तो ये जो वैल्यू है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये जो है ये क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 1 पे है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ पे 100% है। हो सकता है कि यहाँ पे 70% हो, और हो सकता है यहाँ पे 50% हो। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज हो रही है। अच्छा, तीसरा मैंने लिखा है W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कॉन्स्टेंट है, मॉइस्चर कंटेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो है PV, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब पार्शियल प्रेशर क्या चीज है, ये तो वाटर वेपर का प्रेशर है ना। अगर हम मॉइस्चर कंटेंट चेंज ही नहीं कर रहे एयर के अंदर, तो पार्शियल प्रेशर जो है वाटर वेपर का वो कांस्टेंट रहेगा। पिछले प्रोसेस में भी, जो कि सेंसिबल हीटिंग वाला प्रोसेस था, उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी। तो इस केस में भी हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो है PV1 इज इक्वल टू PV2, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और मॉइस्चर का कोई कंटेंट हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का सेम रहेगा, क्योंकि W कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, सेंसिबल कूलिंग में भी यहाँ पे W कांस्टेंट है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कांस्टेंट रहेगा। अब देखो दूसरी बात क्या है इसके बाद, अगर मैं देखूं तो मैं एयर को ठंडा कर रहा हूँ, कूल कर रहा हूँ, तो इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगी डाउन चली जाएगी। किसी भी गैस की स्पेसिफिक वॉल्यूम जब उसको ठंडा करो तो कम होती है, हीट करो तो बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो शायद मैंने आगे बताया हुआ है, आप देखते हैं। अब मैंने लिखा है कि इस प्रोसेस को कैरी आउट कैसे करेंगे, हाउ टू कैरी दिस प्रोसेस। कैसे कैरी आउट करना है इस प्रोसेस को, हमारे पास ये एक डक्ट है जिसके अंदर मैंने एक कूलिंग कॉयल लगा दी। ठीक है, ये कूलिंग कॉयल लगा दी, इसका टेम्परेचर T3 है। ये इसका डक्ट का ये जो कूलिंग कॉयल का टेम्परेचर है T3 है। एयर जो है T1 पे आ रही है, T2 पे बाहर निकल रही है। अब देखो, और ये जो T3 टेम्परेचर है ना, ये TD1 से ज़्यादा है। ठीक है, ये TD1 से ज़्यादा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, आपको मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। मान लिया मेरे पास जो एयर एंटर कर रही है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ये जो कूलिंग कॉयल है इसका T3 टेम्परेचर जो है ये T3 टेम्परेचर जो है, ये मान लिया मैंने, मेरे पास है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। और एयर जो बाहर निकल रही है ये निकल रही है 20 डिग्री सेल्सियस पे। और ये जो TD की वैल्यू है TD1, ये जो वैल्यू है ये है 10 डिग्री सेल्सियस। देखो, बड़े ध्यान से देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने सभी टेम्परेचर यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे डायग्राम यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, अब इसको देखो, यहाँ पे जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में मैंने 1, 2 और 3 बताया हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। 2 पे टेम्परेचर जो आया मेरे पास वो आया 20 डिग्री सेल्सियस, ट्राइबल टेम्परेचर। और 3 जो है टेम्परेचर है वो कूलिंग कॉयल का टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। और जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो कूलिंग कॉयल का टेम्परेचर T3 रखना है ना, दिस ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन, जो इनकमिंग एयर स्ट्रीम है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से TD1 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों है, अगर मैं कूलिंग कॉयल का टेम्परेचर 15 की जगह पे 10 डिग्री रख दूंगा ना, तो कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा एयर में से मॉइस्चर का। तो ये प्रोसेस जो है ये सेंसिबल कूलिंग नहीं रहेगा, ये प्रोसेस हो जाएगा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, मतलब मॉइस्चर उसमें से निकल रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना। पॉइंट नंबर, ये जो TD1 है, ये जो टेम्परेचर है, दिस इज TD1। ओके, दिस इज TD1 इज इक्वल टू TD2, और इसकी वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस।
I left the meeting by mistake. No problem, sir. So, is it clear whatever I have told you? Yes, sir. ओके, तो ये ह्यूमिडिफिकेशन के प्रोसेस में ये ऐसे हो रहा है। अब देखते हैं इसको हम कैरी आउट कैसे करेंगे। ठीक है, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? No, sir. ओके, No. आई विल शेयर।
Now, are you able to see the screen? Hello? Yes, sir. Okay. So ये हमारे पास आ गया. I think मेरी स्क्रीन जो है जैम हो गई है, चल नहीं रही. ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर. तो इसको, इस प्रोसेस को, ह्यूमिडिफिकेशन को, हम एक्चुअली में एक दूसरा नाम भी देते हैं. इसको कहते हैं प्योर ह्यूमिडिफिकेशन. यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है प्योर ह्यूमिडिफिकेशन. अब एक्चुअली में जब भी हम ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रोसेस बिल्कुल पॉसिबल है, कि टेम्परेचर बिल्कुल भी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. अब देखो इसको हमने कैसे करना है. इसको करने के लिए हमने क्या किया है, दो टैंक लिए. एक टैंक ये है, यहाँ पे एक हमने पंप लगाया हुआ है, और यहाँ पे इस पंप से वाटर जो है ऊपर वाले टैंक में जा रहा है, और ये हमने यहाँ पे नोजल्स लगाए हुए हैं. ठीक है. नोजल से वाटर स्प्रे होके नीचे आ रहा है, और जो वाटर का टेम्परेचर है वो इनकमिंग एयर स्ट्रीम जो है ना, उसके ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बराबर है. ये देखो यहाँ से एयर एंटर कर रही है T1 और W1 पे. मैं कह सकता हूँ कि इसका मास Ma1 है. ठीक है. जब ये लीव कर रही है तो मास तो उतना ही रहेगा, Ma1, विच इज इक्वल टू Ma2. ठीक है. लेकिन ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी सेम है, तो T1 इज इक्वल टू T2, नो चेंज. लेकिन जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, वो बढ़ गया, W2 इंक्रीज हो गया है. तो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस इज हैपनिंग. अब एक्चुअली में ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि जब आप मॉइस्चर ऐड करो तो एयर का टेम्परेचर कम ना हो. आपको पता है कि डेजर्ट कूलर में क्या होता है, जैसे ही एयर में मॉइस्चर ऐड होता है, एयर ठंडी हो जाती है. तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमिडिफाई तो हो रही है एयर, बट साथ में ठंडी भी हो रही है. तो इसलिए प्योर ह्यूमिडिफिकेशन मतलब सिर्फ हम ये कहें कि हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे और मॉइस्चर ऐड कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अब इस केस में क्योंकि हम ट्राइबल टेम्परेचर तो चेंज कर नहीं रहे, तो इस केस में जो हम है एक तरह से लेटेंट हीट ऐड कर रहे हैं, मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं. तो आप लोगों को डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर आप देखोगे वीडियो लेक्चर में दोबारा, तो आप इसको समझ सकते हो. बट इसका फार्मूला जो है फाइनली क्या आएगा, वो ये है, लेटेंट हीट जो ऐड कर रहे हैं हम, दैट इज इक्वल टू 50 CMM डेल्टा डब्ल्यू दिस मच किलो वाट्स. ठीक है. ये वैल्यू आएगी हमारे पास. और ऊपर मैंने इसका एक्सप्लेन किया हुआ है ये कैसे आया है, इसको थोड़ा सा देख लेना. ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा. नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप इस वैल्यू को याद कर लो. इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है डीह्यूमिडिफिकेशन का. डीह्यूमिडिफिकेशन क्या है, जो ह्यूमिडिफिकेशन था उसका उल्टा है. तो वंस अगेन इसको मैं डीह्यूमिडिफिकेशन के साथ साथ ऐसा भी कह सकता हूँ कि इट इज प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन. प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन. ओके. तो इसमें क्या होगा, इसका पर्पज ये है इस प्रोसेस का कि हमें जो है ह्यूमिडिटी को, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करना है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना है, कीपिंग दी ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट नंबर 1 से एयर के पॉइंट नंबर 2 तक हमने क्या किया है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखा है, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है W2 इट इज लेस देन W1. मतलब हमने मॉइस्चर को कंडेंस आउट कर दिया है एयर में से, एक तरह से हमने कुछ मॉइस्चर को निकाल दिया है, तो उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है डाउन चली गई है. तो ये रहा, ये मैंने लिखा भी हुआ है. अब जब मैंने मॉइस्चर को रिमूव किया है तो एंथैल्पी भी कम हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर रिमूव करेंगे तो उस मॉइस्चर की जो एंथैल्पी है, दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एंथैल्पी. ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. ये वेट बल्ब टेम्परेचर था ऊपर वाला, ये वेट बल्ब टेम्परेचर डाउन चला गया है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डाउन चला जाएगा. ठीक है. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखूँ
तो ये जो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। सो phi2 इज लेस देन phi1। और क्योंकि लेटेंट हीट है तो लेटेंट हीट रिजेक्टेड कैसे हो, कितनी होगी? लेटेंट हीट रिजेक्टेड हो जाएगी 50 cmm डेल्टा डब्ल्यू। जो एडिशन का फार्मूला था सेम इज द फार्मूला एप्लीकेबल फॉर द लेटेंट हीट रिमूवल आल्सो। अब इसको कैसे कैरी आउट करना है, इस प्रोसेस को कैसे कैरी आउट करना है? हम कुछ केमिकल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सिलिका जेल का नाम सुना होगा, एक्टिवेटेड एल्यूमिना का नाम सुना होगा, कैल्शियम क्लोराइड है, जियोलाइट है। इन सब केमिकल्स को यूज करके हम जो है डिह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे भी जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी हम केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एयर में से मॉइस्चर बाहर आ जाएगा। अब जब मॉइस्चर बाहर आएगा तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलेगी, क्योंकि कंडेंस हो रहा है तो कुछ हीट तो बाहर निकलेगी ना, वो एयर में ऐड हो जाती है। तो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये प्योर डिह्यूमिडिफिकेशन है। प्योर डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है कि ड्राइबल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। डिह्यूमिडिफिकेशन के टाइम पे टेम्परेचर एयर का जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो कंडेंसेशन की हीट है वो वापस एयर में ऐड हो जाएगी। okay, so that is the reason this process, carrying out this process at constant variable temperature is very difficult. And another name for this process is rather than dehumidification, we also call it as chemical dehumidification, because we are using a chemical for the process for carrying out the process of dehumidification. Okay, आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है? हीट ट्रांसफर। I can Sir, heat and mass transfer. उसका तो कोर्स खत्म हो गया ना, टेस्ट है सर। टेस्ट है सर आज टेस्ट है। अच्छा, सर का फोन आया क्या? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ था। अगर 5-7 मिनट एक्स्ट्रा करके मैं खत्म कर ले देता लो तो। सर, आप ले लो सर, कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन देखो ध्यान से। अब इसमें दो पार्ट हो गए, एक हीटिंग हो गया और दूसरा ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। अगर आप यहाँ पे मैंने राइट साइड पे साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे इस प्रोसेस को शो किया हुआ है। देखो, हीटिंग का मतलब है टेम्परेचर को इंक्रीज करना। कौन सा टेम्परेचर? ड्राइबल टेम्परेचर। और ह्यूमिडिफिकेशन का क्या मतलब है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करना। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस शो कर रखा है, ये जो है एक टिल्टेड लाइन से शो कर रखा है, जो कि राइट साइड पे टिल्ट हो रही है। ठीक है ना? तो ये जो लाइन है 1 से 2 में, 1 जो है इनिशियल स्टेट है एयर की, 2 जो है फाइनल स्टेट है एयर की। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियल स्टेट का ड्राइबल टेम्परेचर है T1, फाइनल स्टेट का ड्राइबल टेम्परेचर है T2। तो ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। सिमिलरली अगर आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को देखोगे तो वो भी इंक्रीज हो गई है, W1 से W2 हो गई है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो अब मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। W की वैल्यू इंक्रीज करती है, ड्राइबल टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करती है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड W2 इज ग्रेटर देन W1। अच्छा, इसको हम कैसे कर सकते हैं? इस प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं? मान लो हमारे पास एयर का एक सैंपल है, या रूम में एयर है, आपने रूम में एयर को गर्म करना है और साथ में उसकी ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज करनी है। तो कौन से सीजन में ये प्रोसेस चाहिए होगा? ये विंटर सीजन का प्रोसेस है। विंटर्स में जैसे हमारे पास क्या कहते हैं, दिसंबर का टाइम है, जनवरी का टाइम है, तो एयर में ह्यूमिडिटी मॉइस्चर बहुत कम होता है। आपको मालूम है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, लिप्स हैं, लेग्स हैं, आर्म्स हैं, वो सारे ड्राई हो जाते हैं। वी आर यूजिंग ए मॉइस्चराइजिंग लोशन एक्चुअली। तो मॉइस्चराइजिंग लोशन का पर्पस क्या है कि हमारी स्किन से जो है मॉइस्चर वो एयर में ना जाए। ठीक है? तो अब इसका मतलब जो है कि विंटर में ये प्रॉब्लम आती है, तो हमें विंटर में दूसरा सर्दी भी लगती है। तो अगर हम क्या करें कि अगर हम एयर में स्टीम को फेंकें, अगर हम स्टीम को स्प्रे करें तो क्या होगा? स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या होगा कि एयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और वो ह्यूमिडिफाई भी हो जाएगी, उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा। तो वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। ऐसा मतलब प्रोसेस जो है, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस, जो पर्टिकुलरली विंटर सीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि विंटर में जो है ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, पर्टिकुलरली मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो जाता है। ठीक है? और टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, तो हमें दोनों को बढ़ाना है। एंड उससे जो है ड्राई कफ की प्रॉब्लम भी होती है अगर मॉइस्चर कम है तो। ठीक है? तो अब आपने इस प्रोसेस को देखा है 1 से 2 में। मेरा क्वेश्चन ये है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये रहा मेरा क्वेश्चन
what happens to relative humidity in this particular process? So who would like to answer this question? आपको process आपके सामने है. Decreases. Relative humidity decreases. Okay, किसने बोला है? नाम क्या है अमरजीत. बेटे? अमरजीत sir. अमरजीत, रोल नंबर 2 है. ठीक है. तो और कोई किसी और के दिमाग में कोई आंसर आता है? कहीं ऐसा तो नहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही हो? क्योंकि जो भी आपका आंसर है लॉजिकली उसको बताना है आपने. तो अमरजीत कह रहा है कि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है. कोई और बताना चाहेगा? रोल नंबर से 35 है कोई? 35? 35 नहीं है. ओके, 35 नहीं है तो चलो रोल नंबर 20 होगा कोई. ओके, नोबडी इज इंटरेस्टेड. So humidity will decrease. Relative humidity. रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज. क्या नाम है बेटे तुम्हारा? Sir, roll number 46, Suraj. रोल नंबर 46 सूरज. तो सूरज और अमरजीत दोनों ने ही एक ही आंसर दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज. नो, आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ 6:59 हो गए हैं यहाँ पे. देखो बेटे, इस प्रोसेस को अब ध्यान से देखना. ये मैंने डायग्राम बनाया, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट था 1. अब ये प्रोसेस मैंने हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करना है. अब ये प्रोसेस देखो, ये क्या है? हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन है. ठीक है ना? क्योंकि इसमें W भी बढ़ रहा है और T भी बढ़ रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लो, एक यहाँ पे रही, दूसरी यहाँ पे रही, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो गई. अब देखो, इस प्रोसेस को मैं ऐसे करता हूँ, इस प्रोसेस को मैं ऐसे अगर मैं कर रहा हूँ 1 से 2 में, तो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है. लेकिन अगर मैं इस प्रोसेस को ऐसे कर देता तो क्या होता? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई ना इस प्रोसेस में, 1 से 2 में. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि अगर मैं इस प्रोसेस को ऐसे ले जाऊं, ये देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो क्या हुआ? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है इस केस में. तो कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है. ये डिपेंड करेगा कि आप कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और कितना मॉइस्चर ऐड कर रहे हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार गेट के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं. ठीक है. अब इस प्रोसेस में क्या है? अब इस प्रोसेस के दो पार्ट हैं. ये देखो, ये मैंने लिखा भी हुआ है कि इस प्रोसेस की एप्लीकेशन क्या है, ये आपको मैंने बता दी है. अब हीट एडेड की बात करें तो इसमें दोनों तरह की हीट ऐड हो रही है, सेंसिबल हीट भी ऐड हो रही है और लेटेंट हीट भी ऐड हो रही है. तो मैंने इस प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर दी है, ये वाली 1 से A तक, और दूसरी A से 2 तक, ये जो है वर्टिकल लाइन ये शो कर दी. तो 1 से A जो प्रोसेस है ये सेंसिबल हीटिंग का प्रोसेस है, और A से 2 जो प्रोसेस है ये ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस है. ठीक है. तो टोटल हीट जो ऐड होगी वो मेरे पास आ जाएगी HA माइनस H1 प्लस H2 माइनस HA. ये टोटल हीट ऐड हो रही है. और ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये QL के बराबर है, लेटेंट हीट पार्ट के बराबर है. और HA माइनस H1 ये सेंसिबल हीट के बराबर है. ठीक है. तो अदरवाइज मैंने टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, MA इंटू H2 माइनस H1. और अगर मैं जो मैंने मास फ्लो रेट की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, रो A इंटू CMM डिवाइड बाई 60 और डेल्टा H, अगर मैं ये वैल्यूज पूरी पुट करता हूँ. अच्छा, इसमें एक शायद मैंने पहले बताया नहीं था, जो डेंसिटी ऑफ एयर है ना वो 1.2 होती है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब. तो याद रखना ये स्टैंडर्ड वैल्यू है एयर की, तो यही वैल्यू लेनी है डेंसिटी ऑफ एयर की 1.2 मल्टीप्लाइड बाय CMM इंटू डेल्टा H. तो ठीक है. तो ये फार्मूला मेरे पास आ जाएगा टोटल हीट का इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, विच इज इक्वल टू 0.02 CMM डेल्टा H दिस मच किलोवाट्स. ओके. अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, आई थिंक अब 7 बज गए हैं, तो बेटर यही होगा कि आप लोग जो है सर की क्लास अटेंड करो. मैं आगे कंटिन्यू ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और इसमें टाइम लग जाएगा आपको पढ़ाने के लिए. ठीक है. सो आई विल एंड माई लेक्चर हेयर ओनली. ओके सर.
अटेंडेंस हो गया? अभी नहीं हुई, अभी ले रहा हूँ।